Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read the third objective of planning from the second chapter, 5-year plans in India, goals and achievement. And the objective is equitable distribution or equity. Before I make you understand this, first let us try to understand the other concept. Suppose economic growth, if you are talking about economic growth, it is nothing but the consistent increase of flow of goods and services in an economy for a longer period of time. See, if there's an economic growth and the benefit of economic growth reaches to only few people. Its benefit reaches to only few people, then economic growth is meaningless. Do you all agree with this? Is meaningless. In fact, it should reach larger proportion of society so that distribution of income becomes equitable. And equitable distribution implies social justice. And social justice, this is the aim of our 5-year plan. I'll explain you what. I was talking about the economic growth. Economic growth, the benefit of economic growth becomes useless or become meaningless if it reaches to only few people. In fact, its benefit should reach to a larger section of society. Why? Because if it reaches to only few people, there will be a gap between rich and poor. And if there's a gap between rich and poor, then there cannot be social justice. So it is necessary the benefit of economic growth should reach to a larger section of the society so that the distribution of income becomes equitable. And this implies social justice and of course this is the objective of our 5-year plan. Now what do you mean by equitable distribution of income? First, let us understand what is equal distribution of income. Equal distribution of income. See students, equal distribution of income means every individual in society gets equal share, equal or same share in country's national income. I can say this, in country's national income. अब आपको इसको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. Suppose a doctor and clerk both are getting same salary. इन दोनों को एक ही सैलरी मिल रही है जब ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब डॉक्टर एंड क्लर्क बोथ आर ड्रॉइंग द सेम सैलरी, वर्किंग इन द सेम हॉस्पिटल. अब समझो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेस्ड ऑन योर स्किल या फिर आपकी क्वालिफिकेशन. जो इनकम है, इनकम और डिफरेंस इन इनकम और डिफरेंस इन इनकम is allowed to some extent. मतलब जो डिफरेंस है, आप स्किल्ड हो, आप क्वालिफाइड हो और एक जना जो आपसे कम स्किल्ड है, कम क्वालिफाइड है, तो आपकी जो एक इनकम है और उस बंदे की जो इनकम है, इन दोनों में गैप हो सकता है.
बट ज्यादा गैप होगा वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा. कैसे? सपोज डॉक्टर, मान लो एक डॉक्टर है, वर्किंग एंड और ऑपरेटिंग अ पेशेंट फॉर 1 आवर गेट्स 50,000. इसको 50,000 मिल गया 1 घंटे में, इसने ऑपरेट किया एक पर्सन को. 50,000 उसने उसकी इनकम है. अगर वहीं पर ही हम देखते हैं क्लर्क है और एक क्लर्क मान लो ही इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री जो कमा रहा है 20,000, वर्किंग 8 आवर्स मंथली अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ये देखेंगे जैसे गैप बहुत ज्यादा गैप है 1 आवर एंड 1 मंथ, तो ये जस्टिफाइड नहीं है. दिस कैन नेवर ब्रिंग द सोशल जस्टिस. तो अगर हमें सोशल जस्टिस लाना है अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, देयर कैन बी डिफरेंस इन द इनकम बट टू सम एक्सटेंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस या फिर डिफरेंस अलाउड नहीं होगा. अगर वो होता है तो इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री. सो स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया. कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने होंगे. वन इज ग्रोथ, द सेकेंड इज डेवलपमेंट. और हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाएं. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट पॉसिबल और ज्यादा गैप सोशल जस्टिस नहीं लाएगा. तो फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अलाउड है टू सर्टेन लिमिट, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. राइट? अब ग्रोथ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं, increased in the flow of goods and services in the economy consistently for a longer period of time. ये तो हो गया. And finally this increases the standard living of people. अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में ये ग्रोथ भी आ रहा है, साथ में ग्रोथ के साथ स्ट्रक्चरल चेंज भी आ रहा है. स्ट्रक्चरल चेंज मतलब अगर एक वी नो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है वो आ रहा है प्राइमरी से, सेकेंडरी से एंड टर्शरी सेक्टर से. जो नेशनल इनकम है हमारी, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का ही योगदान होता है. तो हम चाहते हैं कि ज्यादातर शेयर जो सेकेंडरी से हमारे नेशनल इनकम में आए, और हम ये भी चाहते हैं कि ज्यादातर शेयर टर्शरी से हमारे नेशनल इनकम में आए बजाय प्राइमरी. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा ही होता है. सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का शेयर जो होता है, इट इज मोर टुवर्ड्स द नेशनल इनकम देन द प्राइमरी सेक्टर. तो टुडे आई फिनिश्ड द objective of one more objective of 5-year plan. I hope you have understood, and if you like my explanation, please like it, share it, comment and subscribe it. Thank you students.